Shall we start, Rajendra? Yeah, we can start. Wonderful. On behalf of Navjivan Center for Development, I would like to welcome all the esteemed participants. Today, we are going to discuss, about the model village or model gaon agenda for actions. And for the discussion, we have very eminent expert like Mr. Munish Gangwar sir. Munish sir is the former Chief General Manager of NABARD. And we have also one of the eminent speakers, Dr. Hira Lal. Dr. Hira Lal is Additional Mission Director, National Health Mission, Government of Uttar Pradesh, and also the Honorary Advisor of Model Gaon. So without taking much time, I would like to request Munish sir to share your words of wisdom by keeping the subject in mind. Sir, on behalf of all the development sector community, we feel honored and privileged to have with you, sir. So, please, sir. Okay, sir. I'm talking to Sanjay ji. Sanjay, you... Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, who are the audience? Excuse me, sir. 1 minute, please. हीरालाल sir join कर रहे हैं, तो उनको भी rename कर दीजिए, sir, please. Okay. जी sir, Munish sir start. Okay. Sanjay ji, who are the participants? So that it will be slightly. Yeah, sure. Let me introduce the participant. Mostly joined from the non-profit organization. Some of the participants, they are also joined from the higher education institute. Some of the participants is from the government organization, and some of the participants are from the state. I got it. So let me come straight to the subject. I welcome all the participants on behalf of Model Gaon. I am Munish Gangwar, as Mr. Sanjay has told you, and we are talking from Lucknow. Model Gaon project has been based at Lucknow. This project we have started 2 months back, 2.5 months back. Basically, the idea was to how to develop all the villages in Uttar Pradesh, particularly because Gujarat is a relatively developed place. So since we are working at Lucknow in Uttar Pradesh, so basically the idea was to develop the village in UP. As you all know, that this idea of village development is not, neither it is new nor it is innovative. Because a lot of work has been done by many people, and still so many people are in this job. They are doing their best for the rural development. Actually, the inspiration we have derived for this project is from first from Gandhi ji, who was talking about village Swaraj, and then later on, as we all know, our late president, Dr. Abdul Kalam, he had promoted an idea of Pura, providing urban amenities in rural areas. So these are the two trigger points for us, where we derived our inspirations from, and this is how we started this project. Now, this project we have divided this project in 3 parts. Our basic assumption is that unless the people change themselves and they own the idea of development, nobody can impose development from above. The demand for development has to come from the people. But the point is that unless people are aware as to what is development all about, there cannot be any demand for development. And that is why we have firstly identified areas which require development or which require to be addressed in rural areas, in villages particularly. And this we have listed. There are about 25 points in this list. We started with cleanliness, then health, then education, then employment, income generation, organic agriculture, and whatnot. So the list is long, up to 25. This we call
as village manifesto. We have given the name to this list as village manifesto, and we believe that if people in the villages start talking about these areas and start taking some action at their level in rural areas, then probably village development can take place. So this is the मुनीष सर सॉरी टू इंटरप्ट, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर प्लीज हिंदी में थोड़ा सा। अच्छा, वो संजय जी अंग्रेजी में बोल रहे थे इसलिए मैं अंग्रेजी में बोला। ओके ओके, तो सॉरी संजय जी चूंकि अंग्रेजी में बोले, खैर एनीवे, तो जैसा मैं कह रहा था, सर यू मे मिक्स द लैंग्वेज, मिक्स। ओके ओके, फाइन 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 संजय जी, एब्सोल्युटली फाइन, दैट विल बी इजियर फॉर मी टू। सो जैसा मैं कह रहा था कि हमने ये, इसकी प्रेरणा हमको गांधी जी और डॉक्टर अब्दुल कलाम से मिली थी कि हम रूरल एरियाज को भी अर्बन एरियाज की इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसमें वो ये है कि गांव के लोगों में विकास की एक भूख पैदा होनी चाहिए। दे शुड डिमांड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट शुड नॉट बी सप्लाई ड्रिवन, इट शुड बी डिमांड ड्रिवन। तो सबसे पहली बात तो यह है कि गांव के लोगों को थोड़ा एजुकेट किया जाए कि भाई डेवलपमेंट, अगर हम बात कहते हैं कि डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट होता क्या है, हम किसे डेवलपमेंट कहें। एक गांव में अगर मान लीजिए सड़क बना दी गई तो क्या गांव का विकास हो गया? नो। अगर वहां बिजली पहुंचा दी गई तो क्या विकास हो गया? नो। अगर वहां एक स्कूल खोल दिया गया तो क्या विकास हो गया? नो। या वहां एक हॉस्पिटल छोटा बना दिया गया तो विकास हो गया? नो। अगर ये सारी चीजें जब एक गांव में प्रोवाइड की जाएंगी, जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहेंगे, तब हम कहेंगे कि हाँ ये गांव विकसित है, कि इस गांव में बिजली है, पानी है, सफाई है, मेडिकल की प्रॉब्लम नहीं है, कोई अनएम्प्लॉयड नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, राइट, सभी तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये गांव एक विकसित गांव है। ये हमारा आइडिया है। तो सबसे पहले हमने इसको, इन सारे पॉइंट्स को, जो इंडिकेटर्स हैं, संकेतक हैं डेवलपमेंट के, इसको हमने, जैसा मैं कह रहा था कि हमने लिस्ट किया है इसको, और इसको हमने 25 पॉइंट्स एजेंडा पॉइंट बनाया है, जिसको हमने विलेज मैनिफेस्टो कहा। और हमारी ये पहला, दिस इज द फर्स्ट लेग ऑफ आवर एंडेवर। ये हम पहली कोशिश हमारी इस लेवल पे है कि हम गांव के लोगों को ये सिखाएं, उनके दिमाग में आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश करें, और गांव में लोग विकास की बात करें इन टर्म्स ऑफ दीज इंडिकेटर्स, और इनको वो ओन करें, उनको लगे कि हाँ इसकी हमको जरूरत है और इसको हमको करना चाहिए, और वो इसके डिमांड करें। एक बार उनको अगर टेस्ट डेवलप हो जाएगा ऑफ द डेवलपमेंट, तो निश्चित रूप से वो डिमांड भी करेंगे, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, या मान लीजिए गवर्नमेंट होगी, तो बाहर से लोग कोशिश करेंगे कि गांव में वो सारी सुविधाएं पहुंचाई जाएं जो गांव के लोग डिमांड कर रहे हैं, जिससे गांव को विकसित किया जा सकता है। तो ये हमारा पहली स्टेप है कि जिसको हम कह रहे हैं कि वी शुड फर्स्ट एस्टेब्लिश द एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट इन द विलेजेस। आपके गुजरात में बहुत से गांव में ये सब हो रहा है, हमने वहां से भी काफी इंस्पिरेशन, प्रेरणा ली है। तो ये पहला स्टेज है। सेकंड स्टेज होगा कि अगर हम ये डेवलपमेंट की इनिशिएट कर भी दिया जाए इस डेवलपमेंट की प्रोसेस को, तो इसको सस्टेन कैसे किया जाएगा, ये लगातार चलती रहे और ये अपने एंड तक पहुंचे, इसको हम अचीव कर पाए, और उसको हम उसके बाद कहीं उसमें वापस पुरानी पोजीशन में नहीं आए, तो ये सस्टेन कैसे हो। तो इसके लिए जरूरी ये है कि गांव के ही लोग इसको ओन करें। इसको बाहर से कोई इसको सस्टेन नहीं कर सकता। वी कैन वर्क एज ए कैटलिस्ट, but we cannot those who are from the outside, they cannot sustain the process in the village. तो सस्टेनेंस ऑफ द प्रोसेस के लिए गांव के लोगों को ही तैयार होना होगा। तो उसके लिए हमने दूसरे जो स्टेप है, हमारा सेकंड स्टेप, वो होगा कि हम गांव में ही लोगों को तैयार करेंगे, जिनको हमने कहा कि वी विल कॉल देम चेंज मेकर्स। तो वो चेंज मेकर्स का काम होगा कि वो इस डेवलपमेंट की प्रोसेस को आगे ले जाएं, लगातार उसको चलाते रहें। तो चेंज मेकर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे?
तो चेंज मेकर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमने कुछ बेंचमार्क्स तैयार किए हैं कि वो आदमी इतना एजुकेटेड होना चाहिए, उसके पास मोबाइल हो तो अच्छा है, उसको कंप्यूटर आना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिससे कि वो अपने काम को ठीक से कर सके। इतनी कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, इतनी स्किल होनी चाहिए। तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको फिर हम इक्विप करेंगे नॉलेज से, knowledge about the government schemes, knowledge of the technologies which are available, knowledge of the latest information pertaining to the activities in the rural areas. ये सब नॉलेज हम इकट्ठी करके उसको देंगे एट वन प्लेस, सो दैट ही इज नॉलेज वाइज ही इज परफेक्टली इक्विप्ड। पहला काम हम ये करेंगे। और दूसरा काम हम उसको फर्दर उसके डेवलपमेंट के लिए करेंगे कि जो ऑलरेडी हमारे पास ब्राइटर पॉइंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कुछ लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है एग्रीकल्चर में, बहुत सारे लोग पद्मश्री पाए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारे हमारे गांव ऐसे हैं जिनको वहाँ के सरपंच, आपके गुजरात में सरपंच कहते हैं, हमारे यहाँ प्रधान कहते हैं, उन लोगों ने डेवलप किया है, गुजरात में है, दूसरी जगह भी हैं। तो हमने कहा कि हम इन लोगों को जो हम चेंज मेकर्स बना रहे हैं, इनको न केवल थ्योरेटिकल नॉलेज देंगे, इनको हम उन ब्राइट साइड्स पे भी ले जाएंगे जहां अच्छा काम हो रहा है, उनको एक्सपोजर वहां का देंगे, और उन लोगों से जिन्होंने इस तरह के अचीवमेंट्स हैं, जिनके जो परफॉर्मर्स हैं, उनसे इनका इंटरेक्शन करवाएंगे और उनसे इनको मिलवाएंगे, जिससे कि इनको जो काम सामने दिखाई देगा कि हाँ ये हुआ है, इट कैन बी डन एंड इट हैज बीन डन बाय दिस मैन, तो उससे इनको थोड़ा सा इंस्पिरेशन वहां भी मिलेगा और काम करने की हौसला बढ़ेगा, उनका उत्साह बढ़ेगा। तो वहां से वो सीख कर आएंगे और अपने गांव में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए हमने 3-4 लेयर्स का प्रोग्राम बनाया है कि फर्स्ट लेयर जो होगी इसकी, कि हम अपने जिले में ही जहां भी हम मॉडल विलेज की बात कर रहे हैं, मॉडल गांव की बात कर रहे हैं, तो हम वहां ही जो अच्छा काम जहां भी हुआ है, जिस गांव में हुआ, जिस व्यक्ति ने किया है, उनको विजिट करेंगे। तो फर्स्ट लेयर इसकी होगी। सेकेंड लेयर होगी कि हम अपनी स्टेट में जहां भी ये गांव विकसित हो रहे हैं, वहां की स्टेट में, जैसे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम उत्तर प्रदेश में जो अच्छे काम हुए हैं, जहां भी अच्छा वर्क हुआ है, वहां हम इनको ले जाएंगे और वहां इनको दिखाएंगे, जिससे कि इनको लगे कि हाँ ये काम हमारे गांव में भी किया जा सकता है। और थर्ड स्टेज में हम इनको नेशनल लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं तो वहां ले जाएंगे। तो एक्सपोजर विजिट से होता है कि हम सब लोग जानते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग। जब हम देखते हैं कि हाँ ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है। जब एक्स प्लेस पे हो सकता है तो वाई प्लेस पे भी हो सकता है। अगर गुजरात में हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। ये आदमी को मोटिवेशन मिलेगा, वहां जाके वो सीखेगा और वो आके अपने गांव में इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज हो गई कि हम एजेंडा ऑफ डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश करेंगे गांव में थ्रू विलेज मैनिफेस्टो। लोग विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें और डेवलपमेंट की डिमांड करें और डेवलपमेंट की प्रोसेस को खुद ओन करें। और दूसरा कि चेंज मेकर्स बनाएंगे, जो चेंज मेकर्स उस डेवलपमेंट की प्रोसेस को सस्टेन करेंगे गांव में और लोगों की हेल्प करेंगे विद देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर जो उनको मिलेगा, जो हम मॉडल गांव जिसको अरेंज करेगा, फैसिलिटेट करेगा। तो ये चीजें हो गई। दो जो स्टेप्स है हमारी स्ट्रेटजी के, वो ये है कि ये सोशल डेवलपमेंट का काम इन 2 स्टेजेस में होगा। थर्ड स्टेज में हम बात कर रहे हैं, जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्योंकि गांव में या तो एग्रीकल्चरिस्ट रह रहे हैं या वो लोग रह रहे हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, चाहे वेज लेबर की तरह से हो, चाहे टेनेंट फार्मर्स हो, जिस तरह से भी हो, बट गांव में जो लोग रह रहे हैं वो एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है। तो एग्रीकल्चर को जब तक डेवलप नहीं किया जाएगा तब तक गांव का विकास होना संभव नहीं है और इस देश का विकास होना संभव नहीं है। बिकॉज हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में 70% से ज्यादा पॉपुलेशन गांव में रहती है।
तो एग्रीकल्चर को हम एग्रीकल्चर से प्रेजेंट जो एग्रीकल्चर है, जो वर्तमान में जो एग्रीकल्चर का स्वरूप है, उसको बदलना होगा और इसको एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज की डेट में जो हिंदुस्तान में लैंड होल्डिंग्स का स्टेटस है कि अबाउट 90% ऑफ द लैंड होल्डिंग्स आर ऑफ अ साइज लेस देन 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर्स। इसका मतलब है कि ये लैंड होल्डिंग्स वायबल नहीं है, ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। और अगर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर लोग करते रहेंगे तो ये कभी प्रॉफिट मेकिंग होंगी भी नहीं। तो इन लैंड होल्डिंग्स को अगर कन्वर्ट करना है फ्रॉम लॉस मेकिंग टू प्रॉफिट मेकिंग, तो इनको हमको एग्रीकल्चर से एग्री बिजनेस में ले जाना होगा, ये हमारी मान्यता है। और भारत सरकार भी इसी तरह से सोचती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अभी स्कीम चल रही है, सभी लोग जानते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट का भी यही इंटेंशन है कि ये छोटे छोटे जो किसान हैं, ये अपने कलेक्टिव्स बनाएं, इकट्ठा हों, अपने ग्रुप्स में आए, जिनका नाम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी दिया जाएगा या फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम इसको कहेंगे, और इकट्ठा होकर ये अपनी खेती भी करें। तो इनिशियल स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में ये होगा कि ये अपने इनपुट्स वगैरह की जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर एग्रीगेट कर लेंगे और एग्रीगेट करके अगर कलेक्टिवली वो मार्केट से खरीदेंगे तो उनको वो प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं, उनकी कॉस्ट कम हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एक किसान है, वो 1 एकड़ का किसान है, तो हो सकता है उसको 5 बैग्स ऑफ यूरिया चाहिए। तो 5 बैग्स यूरिया लेने जाएगा तो कोई भी किसी से वो नेगोशिएट नहीं कर सकता है, उसको जो मार्केट में अवेलेबल है जिस रेट पे, उसी रेट पे मिलेगा। और वो लेने जाएगा अगर शहर से, तो गांव से शहर जाएगा, पूरा दिन अपना वो स्पेंड करेगा, और उस दिन की अगर वेजेस लगाई जाए तो उसकी वेजेस भी लूज होंगी और उसको मार्केट प्राइस पे मिलेगा, वो नेगोशिएट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1000 फार्मर्स इकट्ठा होकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाए हुए हैं और उनको सबको 5 बैग्स ईच चाहिए, तो 5000 बैग्स हो गया। तो 5000 बैग्स के लिए निगोशिएट कर सकते हैं वो, तो कोई भी कंपनी उनसे निगोशिएट कर सकती है, उनकी प्राइस को थोड़ा कम कर सकती है, कॉस्ट इससे कम हो जाएगी। इसी तरह सीड्स है, इसी तरह और जो रिक्वायरमेंट्स है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा। तो ये हो गया कि इनिशियल स्टेज पे जब बुवाई का अगर आपका समय है, सोइंग का सीजन है, तो आपको इनपुट्स की आवश्यकता है, आप इकट्ठा होकर खरीदिए, जिससे कि आपको इसमें आप नेगोशिएट कर सकते हैं कॉस्ट को, और कॉस्ट कम हो जाएगी तो आपको उससे लाभ होगा। दैट इज वन। उसके बाद हार्वेस्टिंग के समय फिर वही कि अगर सब लोग इकट्ठा होकर अपनी प्रोड्यूस को पूल कर लेंगे, तो जब वो पूल कर लेंगे तो उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए एक किसान है, उसके पास 10 क्विंटल वीट पैडी है, वो 10 क्विंटल पैडी या 5 क्विंटल पैडी बेचना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसको मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ही बेचना पड़ेगा। वो किसी से नेगोशिएट नहीं कर सकता कि भाई कोई कंपनी है जो राइस प्रोडक्शन का काम करती है, उसको वो बेचे, उससे वो नेगोशिएट कर ले, प्राइस बार्गेन कर ले। दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर 1000 फार्मर इकट्ठा होके उनके पास, सबके पास, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, अगर 5 बैग्स या 10 क्विंटल गेहूं पैडी है, तो वो दैट बिकम्स ह्यूज, 5000 क्विंटल्स और 10,000 क्विंटल्स। तो वो उसको फिर निगोशिएट कर सकता है और वो कंपनी उनके घर से ही उठा लेगी उनकी प्रोड्यूस को। तो उनको जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा होता है वही मिलेगा, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगी, तमाम तरह की कॉस्ट बचेंगी और बहुत सारी परेशानियों से वो बचेंगे। तो इसमें उनको लाभ होगा, मार्जिन बड़ा हो जाएगा। इनिशियल स्टेज पे ये करेंगे वो, और उसके बाद जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपीरियंस गेन करने के बाद बहुत तरह का एग्री रिलेटेड बिजनेस भी कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं एफपीओ के बारे में, उसमें उन्होंने लिस्ट भी किया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज ये कर लेंगे, एंड दैट लिस्ट जो है वो दैट एंड्स विद एक्सपोर्ट्स। तो सभी तरह का बिजनेस, फर्टिलाइजर का बिजनेस हो सकता है, दवाइयों का बिजनेस जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसका हो सकता है, एग्री मशीनरी का बिजनेस हो सकता है, और बहुत तरह के बिजनेस बाद में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं। इससे ये प्रॉफिट कमाएंगे और वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने मेंबर्स पे, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। सरकार का यही एजम्पशन है, सरकार की यही इच्छा भी है।
सरकार की यही कोशिश भी है, तो इसी को हमने अडॉप्ट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है दे विल बी कन्फाइंड टू दीज एक्टिविटीज ओनली। वो हो सकता है कि फिर और तरह की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होंगे बाद में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। और जब बड़ा हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन तो उसकी आमदनी बड़ी होगी, और बड़ी आमदनी होगी तो मार्जिन बड़ा होगा, मार्जिन बड़ा होगा तो लोगों का शेयर उस मार्जिन में भी बड़ा होगा, इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो इन नक्शल जो गवर्नमेंट चाहती है वो ये कहना चाह रही है कि भाई अकेले अकेले आप अनवायबल हो, लेकिन अगर आप इकट्ठे हो जाओ, यू फॉर्म योर कलेक्टिव्स, और उसके बाद अगर आप एग्रीकल्चर करोगे तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी अभी से ज्यादा होगी। तो इस पे हम लोग थर्ड फेज में काम कर रहे हैं, बट थर्ड फेज हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर अस। मतलब वी आर वर्किंग ऑन ऑल दी 3 स्टेप्स सिमल्टेनियसली। हम विलेज मैनिफेस्टो को प्रमोट कर रहे हैं, उसको उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोग उसमें बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, और बहुत सारे लोग विलेज मैनिफेस्टो को अपने अपने लेवल पर उसको हैंड बिल्स बनवा कर बंटवा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं लोगों को। हम चेंज मेकर्स की बातचीत भी लोगों से कर रहे हैं। वी आर नेटवर्किंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हु कैन वर्क एज चेंज मेकर्स। तो ये वर्क भी हमारा साथ ही साथ चल रहा है। एंड थर्ड, एफपीओ के बारे में हम फॉर लास्ट मोर देन 8 months हम लोग रेगुलर बेसिस पर एफपीओ के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, और उनको एफपीओ कैसे बनाया जाए, कैसे चलाया जाए, गवर्नमेंट की क्या फैसिलिटीज इसमें है, फार्मर्स को इससे क्या लाभ होगा, इन सब बातों के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑल दी 3 stages we are taking care of simultaneously. So this is all about the model गांव. At the end, we feel that at the end of the day, जब ये सारी एक्टिविटीज किसी गांव में शुरू हो जाएंगी, एक गांव में विलेज मैनिफेस्टो के अनुसार लोग डेवलपमेंट देखेंगे, चेंज मेकर्स वहां होंगे, एक एफपीसी वहां होगी, तो गांव में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, गांव में ही एजुकेशन भी अच्छी होने लगेगी, गांव में लोगों की हेल्थ भी अच्छी होगी। बिकॉज जब इनकम बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो डिमांड करेंगे कि भाई हमको हेल्थ की फैसिलिटीज भी चाहिए, हमको अच्छी एजुकेशन भी चाहिए, हमको क्लीनलीनेस भी चाहिए। और गवर्नमेंट ये सारी चीजों पर बहुत पैसे खर्च कर रही है। ऑलरेडी गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, लेकिन वो उतना रिजल्ट नहीं, आउटकम उसका उतना इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं हो रहा है, दैट इज वन। और दूसरा ये है कि लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें नहीं है। लोग समझते हैं अरे ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये तो गवर्नमेंट करेगी ही, तो निश्चित रूप से फिर वो उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं होता है। तो अगर एक बार सभी लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे एंड एवरीवन विल ओन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज देयर ओन इन द विलेज, तो निश्चित रूप से वो एक सोशल ऑडिट भी साथ साथ चलता रहेगा काइंड ऑफ, और उससे जितनी भी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन है उनका आउटकम भी अच्छा होगा। और जो लोग अपने लेवल पे नया इनोवेटिव काम करेंगे उसका आउटकम भी अच्छा होगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो अभी तो हमारा सिंस इट्स अ बिगनिंग, वी आर ओनली 2.5 months ओल्ड, तो उसके रिजल्ट्स हम देखते हैं। रिजल्ट्स आने में थोड़ा समय लगेगा, 2-4 महीने का, बट दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट द मॉडल विलेज। संजय जी, दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। या थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात बताई। और बहुत अच्छी बात यह है कि आज तक तो हमने इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में बात सुना था, लेकिन और वो ऐसा मैनिफेस्टो है, सब लोगों को पार्टिसिपेंट भी पता होगा कि सिर्फ मैनिफेस्टो ही रहता है, कभी ग्राउंड पे नहीं होता है। और आपने एक बहुत अच्छा हमें एक सुझाव दिया, मतलब एक आइडियाज दिया कि एक गांव का भी एक मैनिफेस्टो हो सकता है। सर, we really appreciate the things that you have shared with us. Apart from this, you have also, some of the important component of it, like ये डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। और ये मॉडल विलेज को
आगे ले जाने के लिए सर आपने चेंज मेकर का जो कॉन्सेप्ट बताया कि चेंज मेकर को कैसे आइडेंटिफाई करना है जी और उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो भी हमारे लिए बहुत अहम बात है। और फार्मर्स कलेक्टिव्स की बात किया कि अपनी फार्मर्स की आजकल एमएसपी की बात हो रही है, तो अपनी चीज को ज्यादा वैल्यू देने के लिए फार्मर्स कलेक्टिव काफी एक सक्सेसफुल मॉडल है। हालांकि सब लोगों ने अभी एक्सेप्टेंस नहीं है फार्मर्स से साइड से, तो जी ये चेंज मेकर इसी चीज को कोऑर्डिनेट और फैसिलिटेट करता है। तो सर आपने एक बहुत अच्छी बात रखी और जी आसान भाषा में धरातल की बात की कि इसी चीज को लेकर हम कैसे मॉडल विलेज को बना सकते हैं। सर बहुत धन्यवाद इस बात को लेकर। थैंक यू। कुछ सवाल भी है तो मानता हूँ कि डॉक्टर मेरा रिक्वेस्ट है कि बिफोर वी टेक द क्वेश्चंस, डॉक्टर हीरालाल जी जुड़े हुए हैं, we can request him to express his views on the subject and then we can go for the questions. Will that be all right? या ओके वंडरफुल सर। जी चलिए, तो आप सभी लोगों का स्वागत है और मुझे खुशी हो रही है अभी 2 दिन के गैप के बाद मैं फिर गुजरात पहुंच गया। अभी मैं 3 दिन गुजरात रह के आया हूं और आज मैं फिर गुजरात पहुंच गया हूं, तो इसका बड़ा अच्छा मैसेज है। अभी मैं गुजरात गया था तो मॉडल गांव पे ही चर्चा करने गया था। सुगढ़ में एक इन्वायरमेंटल का बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है और वहां पे गांव को चेंज करने के लिए लोक मित्र का कॉन्सेप्ट लाए हैं। बेसिकली जो मेरे समझ में आया, जो लोक मित्र का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली वही जो हम लोग चेंज मेकर की बात कर रहे हैं। तो जब हमने उनके सामने उनके लोक मित्र को प्रेजेंट किया, अपनी बात बताई, तो लोगों को बड़ा मजा आया और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया और कहा साहब कि ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कदम है और ये बहुत अच्छा है और ये आने वाले दिनों में देश का और गांव का तकदीर बदलेगा। एक बात, इसके बाद हम लोग दूसरे दिन, ये तो शनिवार की बात थी, संडे को एक इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ और उसमें था मॉडल गांव पे ही चर्चा थी। तो जब मैं वहां बोलने गया तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये लिटरेचर की बात कर रहे हैं और वो इंटरनेशनल लिटरेचर का इवेंट है और मैं देहात और गांव की बात करने जा रहा हूं। दोनों में कनेक्शन क्या है? तो मैं आपको बताऊं, लिटरेचर, हर चीज का लिटरेचर होना चाहिए, चाहे किताब के रूप में, चाहे म्यूजियम के रूप में, चाहे रिसर्च पेपर के रूप में। जब मैंने इस पर थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश की तो मुझे कुछ बुक मिले, कुछ लिटरेचर बुक के फॉर्म में मिले, लेकिन वो बहुत गिने चुने 10-12 किताब मिले और म्यूजियम हमें नहीं मिला। लेकिन जब मैं विदेशों में इसका रिसर्च किया, विदेशों में बड़े बड़े म्यूजियम और बहुत सारी किताबें गांव पर हैं, लिटरेचर है। तो मुझे ये सीख मिली कि अब हम लोगों को, पहले 25 साल पहले हल कैसे होता था, वो कैसे कैसे बदला, पहले खेती कैसे होती थी, इस सबका एक म्यूजियम होना चाहिए, हर जनपद में होना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में हम अपने मजबूत गांव के इतिहास को कैसे जान पाएंगे, कैसे देख पाएंगे। तो मेरा एक अनुरोध यह भी है कि हम लोगों को इस पर भी काम करना चाहिए कि गांव पर लिटरेचर डेवलप करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बुक, इन द फॉर्म ऑफ म्यूजियम एंड अदर्स टेक्निक्स ऑफ द लिटरेचर। ये मैंने वहां से सीखा और हर मीटिंग में मैं इस बात को रख रहा हूं। अगर आप में से, बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर आप में से कोई इस पर काम करना चाहते हो, गांव पे लिटरेचर किसी भी फॉर्म में डेवलप करना चाहते हैं, तो हम लोग आपका स्वागत करेंगे और जो कुछ भी लिटरेचर आप डेवलप करेंगे हम लोग अपने ब्लॉग में उसे डालेंगे और आप लोगों के नाम से डालेंगे और आप लोगों को कनेक्ट करेंगे। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि गांव का जो कॉन्सेप्ट है, लगातार हम लोगों के पास क्वेरी आ रही है, लोग हमारे ऑफिस पे आ रहे हैं, इनविटेशन आ रहा है। अभी बहुत जल्दी ही
मुझे गुजरात से ही, जैसे मैं गुजरात से अभी परसों जब लौटा तो वहां से फोन आया कि साहब वहां के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आपके मॉडल गांव का एक वेबिनार करना है। उनको कहीं से जब पता लगा तो वो लोग कह रहे हैं तो बहुत अच्छा है, उस वेबिनार हम लोगों ने एक्सेप्टेंस उस वेबिनार को करने की दे दी है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नया नहीं है कि हम पहली बार इसको टेस्टेड ट्राइड कर रहे हैं। हम लोग इस मॉडल को टेस्ट और ट्राई बादा में 1.5 साल में कर चुके हैं। उसी का ये ऑर्गेनाइज रूप है। श्री मुनीष जी इसके प्रेसिडेंट हैं, सीजीएम नाबार्ड हैं, इनका 30-35 साल का अनुभव है, और आईसीसीआई फाउंडेशन इसको सपोर्ट कर रहा है टू रन इट इन ए ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। तो उनका भी धन्यवाद है आईसीसीआई फाउंडेशन का, जो इसको ऑर्गेनाइज रूप में रन करने के लिए हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, धनी वही हो सकता है जो धनी होने के बारे में सोचेगा, सपना देखेगा। ये जो मॉडल गांव है, ये कोई नया काम हम या कोई नया जादू लेके नहीं आए। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? ग्राम स्वराज। ये फिर लेट एपीजे कलाम साहब जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक स्कीम, एक प्रोग्राम चलाया था पूरा, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल एरिया पूरा। लेकिन सही बात यह है कि गांव अभी फोकस में नहीं है, सेंटर में नहीं है, पेरीफेरी पे है। मॉडल गांव का काम यह है कि इस मुद्दे को, गांव के विकास के मुद्दे को, गांव को पेरीफेरी से सेंटर में लाना है। सभी लोगों के दिल दिमाग सोच में मॉडल गांव बनाना है। जब एक बार लोगों के दिल दिमाग सोच में मॉडल गांव बन जाएगा, इस पर चर्चा होने लगेगा, इसके लिए वो डे ड्रीमिंग करने लगेंगे, तो आपका गांव मॉडल गांव बनने से कोई रोक नहीं सकता। आपके गुजरात में ही एक गांव है पुनसरी, हिमांशु पटेल 31 साल के उसके सरपंच हुए, और उन्होंने 2 टर्म सरपंच के रूप में गांव को इतना बढ़िया मॉडल गांव बना दिया कि अमिताभ बच्चन से लेके हर आदमी उनकी तारीफ करता। तो आपको अपने गांव को मॉडल बनाने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। हिमांशु पटेल जी का नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, राघवेंद्र जी, आप उनसे बात करिए, उनके गांव में जाइए, सीख के आइए। अगर ये काम हिमांशु पटेल 31 साल के नौजवान कर सकते हैं, तो आप में से हर आदमी इस काम को कर सकता, अपने गांव को मॉडल बना सकता। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और सीख के लाके गांव में लागू करना। एक और बात है, हम लोग अभी तक क्या होता है, टॉप डाउन, कोई भी बात होता सरकार कर दे, कोई भी बात होगा, प्यास आपको लगी है, पानी कौन पिलाए? सरकार। हम हमेशा हर बात के लिए सरकार की तरफ देखते हैं। मतलब टॉप डाउन, सरकार दे, डाउन आए गांव में और हम उसका आनंद लें। तो ये जो टॉप डाउन का कॉन्सेप्ट है, ये कामयाब नहीं है जितनी कामयाबी होनी। हमें बॉटम अप से काम करना चाहिए। तो जो काम करने का तरीका होना चाहिए, उसके 3 ट्रिक होने चाहिए। 3। पहला क्या है? गांव के सभी लोगों को एक्टिवली सोचना पड़ेगा, सबको गांव के विकास में लगना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये नहीं खाली प्रधान जी करेंगे, सचिव साहब करेंगे, ये तो सरकार का काम। ये भावना तोड़ना पड़ेगा। सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जिसके पास जो क्षमता है, जो कर सकता है, जो भी उसके बस में है, उसे वो धन, अकल के रूप में, पैसे के रूप में, सहयोग के रूप में कन्वर्जेंस ऑफ इनपुट फंड्स नॉलेज करना चाहिए। और तीसरी बात, हम लोग क्या करते हैं, हर काम में पैसा देखते हैं। पैसा, इतने करोड़ का बजट है, तो हमें वो काम करना चाहिए जिसमें लो कास्ट या नो कास्ट, हमें वो एक्टिविटी शुरू करनी चाहिए, आइदर इट इज नो कास्ट और लो कास्ट। तो ये जो 3 ट्रिक है, टेकिंग एक्टिविटी ऑफ लो कास्ट, नो कास्ट 1, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द विलेजर्स
and third is convergence of inputs, knowledge and all resources available in the villages. तो अगर हम लोग ये करें तो आप लोगों का गांव मॉडल गांव बनेगा, समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, इम्तिहान भी लेगा। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मॉडल गांव की साइट को आप पढ़िए, www.modelgaon MODEL गांव GAON गांव.org। हम लोग इस साइट को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये साइट कोई इत्मीनान से 2 बार पढ़ ले तो किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, केवल करने की जरूरत है। तो आपसे मेरा ये देखिए, इन्होंने डाल दिया है चैट में, हमारे ऑफिस मैनेजर साहब राघवेंद्र जी ने मॉडल गांव की साइट डाल दी, सारे कांटेक्ट डाल दिए। आप सभी लोग मॉडल गांव के सोशल मीडिया से जुड़िए। हम लोगों के वेबिनार के बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो हैं, उसको देखिए। अगले सप्ताह पर डे 3-4 घंटा मॉडल गांव की साइट पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे पढ़िए, नोट बनाइए और इससे जुड़ने की कोशिश करिए। आपको इतना नॉलेज मिलेगा, आपको इतनी ऊर्जा अंदर से, आपके कहते हैं ना दिमाग की बत्ती खुल जाएगी, दिमाग फड़फड़ाने लगेगा और जब दिमाग की बत्ती जल जाएगी तो आप दौड़ने लगेंगे, भागने लगेंगे और आपके गांव का विकास होने लगेगा। अभी मैं आपके यहाँ एक डॉक्टर भरत पटेल जी हैं और बहुत फेमस डॉक्टर हैं, आर्थोपेडिक सर्जन, वो घुटना रिप्लेसमेंट के। 90 किलोमीटर अहमदाबाद से मैं उनके गांव गया, उनका जो बायो फर्टिलाइजर का है वो देखने। ठीक, वो कहते हैं और कि मैं गोबर इज गोल्ड, उनका नारा है गोबर इज गोल्ड। 1 किलो गोबर से मैं 100 रुपया पैदा करूंगा, ब्लैक रिवॉल्यूशन लाऊंगा। हम वहां 3 घंटे उनके हर काम को देखे, उनसे डिस्कस किए, उनकी बात में दम है। आप लोग भी उनके उस प्रोजेक्ट को देखिए, गोबर इज गोल्ड और गोबर रिवॉल्यूशन, ब्लैक रिवॉल्यूशन होगा। उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिया है, उनकी कंपनी पे जाके देखिए। मैं लखनऊ से फ्लाई करके अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से बाई रोड 90 किलोमीटर उनके गांव गया। तो आपके प्रदेश में ही ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं। आनंद में एक केतन पटेल जी हैं, उनका केले पे बहुत बड़ा काम है, मुझे उनके यहाँ जाना था, देखने में नहीं जा पाया। और हिमांशु जी के यहाँ मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं बायो एनर्जी गोबर इज गोल्ड को देख के आया। आंखें, मैं IAS अफसर हूँ, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो लोग कोई अमेरिका की या यूरोप की नकल नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ अपने घर में, अपने गांव में, अपने बुद्धि से सब डेवलप किया है। बॉटम अप है, टॉप डाउन नहीं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, सपने देखिए धनी होने का, और अगर आप सपने देखने लगेंगे तो आपको धनी होने से कोई रोक नहीं सकता। हम आपका साथ देंगे, हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, हम आपको यूपी बुलाएंगे, हम आपको विदेश की यात्रा गांव की कराएंगे। सारी बातें हमारे प्लान में है। तो सबसे पहले आप modelgaon.org पढ़िए। modelgaon.org पढ़ने के बाद हमारे सारे सोशल मीडिया ज्वाइन करिए और पहले मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट को समझिए। और हमसे सोशल मीडिया से, ईमेल से, मोबाइल नंबर सब कुछ दिया हुआ है, जुड़िए। पहले रिश्तेदारी कायम करिए मॉडल गांव से, पहले मॉडल गांव को रिश्तेदार बनाइए। एक बार आपने रिश्तेदारी बना ली मॉडल गांव से तो आपका गांव मॉडल बनेगा। क्यों? जब आपका मॉडल गांव रिश्तेदार हो जाएगा तो आप दिन में मॉडल गांव के सपने देखेंगे, और जब आप दिन में मॉडल गांव के सपने देखेंगे, मैं आज तक कभी नहीं गया गुजरात 90 किलोमीटर, लेकिन मेरी मॉडल गांव से रिश्तेदारी हो गई है, दिन में मैं मॉडल गांव का सपना देखता हूं। तो मैं भी आपके बता तो रहा हूं, मैं हर सप्ताह कहीं ना कहीं गांव में जाता हूं और वहां अध्ययन करता हूं और उसको लागू कराने की कोशिश करता हूं। तो अगर एज IAS अफसर, एज कलेक्टर, मैं सीखने की लालसा रखता हूं, मैं भाग दौड़ कर सकता हूं, अपने पैसे खर्च करता हूं सीखने। नॉलेज इज पावर। हम आपके नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि एम्पावर्ड नहीं है, आपके पास पावर नहीं है। तो आपको पावरफुल करने के लिए, एम्पावर करने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज, क्योंकि नॉलेज इज पावर। तो हमारा ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है टू एम्पावर यू बाय प्रोवाइडिंग यू द रिलेवेंट एंड एडिक्वेट नॉलेज, बिकॉज नॉलेज इज पावर। तो दिस इज ऑल अबाउट
मैं लास्ट में यही कहूंगा कि मॉडल गांव की साइट पढ़िए, हमसे जुड़िए, मॉडल गांव को अपना रिश्तेदार बनाइए। मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर मुनीष जी मानिए। हाँ, थैंक यू सर। संजय जी, नाउ वी कैन टेक क्वेश्चंस। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर हीरालाल सर, आपने बहुत अच्छी बात रखी। पहले तो आपने बॉटम अप अप्रोच की बात की, उसके बाद जो 3 मैजिक सूत्र आपने दिए सर, मैं इसलिए आपको एक चीज रिपीट करता हूँ ताकि सब लोगों के दिमाग में चला जाए। एक है, ये बहुत अच्छी बात है सर, और हर लोग भी कर सकते हैं, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट एक्टिविटीज मॉडल गांव के लिए। दूसरी बात ये है कि पार्टिसिपेशन, एंगेजमेंट ऑफ द विलेजर्स को इस काम के लिए जुड़ना। और तीसरी बात है कन्वर्जेंस। सर ये 3 सूत्र जो है वो मैं मान सकता हूँ कि बहुत कम कॉस्ट में मॉडल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अचीव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात आपने विद इन द शॉर्ट टाइम आपने बताई। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पार्टिसिपेंट को कि हमारे जो ऑनरेबल पैनलिस्ट है उनके लिए जो कोई सवाल है तो आप उसका नाम देकर भी पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं। कुछ सवाल ऑलरेडी सर आ चुके हैं जी। तो एक नरेंद्र कुमार रथ का सर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडल विलेज एंड हु आर द की स्टेक होल्डर हु विल लीड द मॉडल विलेज। सर रिक्वायरमेंट ऑफ मॉडल विलेज और की स्टेक होल्डर की सवाल उसने पूछा है सर। हाँ, एक चीज ये बताइए, अन्ना हजारे जी का नाम सुना है आप लोगों ने? अन्ना हजारे जी का नाम सभी लोगों ने सुना है। और अन्ना हजारे जी बुढ़ौती में, मतलब रिटायरमेंट के बाद आए, और वो ड्राइवर थे, डंपर ड्राइवर थे। और आ करके उन्होंने गांव की तस्वीर और तकदीर को ऐसा बदला कि वो इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में सोशल लीडर के रूप में स्थापित हुए। और उनके बारे में अगर मैं कोई बात कहूं तो बहुत अच्छी नहीं होगी। तो जब एक बुजुर्ग आदमी रिटायरमेंट के बाद, ये भी नहीं कि वो पीएचडी थे, ये थे डंपर ड्राइवर थे, उन्होंने रालेगांव सिद्धि में काम करके इंडिया में नहीं पूरे विश्व में ये साबित कर दिया कि गांव कुछ भी हो सकता है, शहर से अच्छा हो सकता है, मॉडल गांव बन सकता है। तो देखिए क्रक्स ये है, उन्होंने सोच लिया इसलिए कर लिया, वो दिन में सपना देखने लगे। तो मेरा ये कहना है कि जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है वो सोचने की जरूरत है, सपना देखने की जरूरत है। मुनीष जी कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, ठीक है, आपने बता दिया सर। ये पहला इनका क्वेश्चन था कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मॉडल विलेज की क्या रिक्वायरमेंट होगी। सपना देखना, सपना देखना, सपना 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 देखे दिन में। ये उसको अगर मॉडल विलेज बनाना है तो नेचुरली वी हैव टू ड्रीम बिग अबाउट द विलेजेस। और एवरी विलेज रिक्वायर्स डेवलपमेंट। कोई भी विलेज ऐसा नहीं होगा जहां स्कोप ऑफ डेवलपमेंट नहीं होगा या स्पेस फॉर डेवलपमेंट नहीं होगी। सभी जगह सभी विलेजेस में कुछ ना कुछ स्कोप होता है। तो सबसे पहला तो जैसा हीरालाल सर कह रहे हैं कि हमको रिक्वायरमेंट ये है कि हम गांव के लोगों की सोच को बदल पाए, उनकी थॉट प्रोसेस को बदल पाए, उनको एक टेस्ट डेवलप करवा पाए फॉर डेवलपमेंट। तो वो डेवलपमेंट का डिमांड करेंगे और उसके बाद सारी चीजें अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। इज द क्वेश्चन आंसर्ड, संजय जी? Yes, sir. Now, sir, there are certain questions, like एक सवाल ये है कि anonymous है. My question is tribal community who have no land. Basically, they are daily laborers in a tea garden. Literacy rate is 45%. जी. What are the major interventions required to make a model village? Right. हाँ सर, बताएंगे आप? नहीं, आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ, बताइए। देखिए, अगर वो इलिटरेट है, मतलब दे आर इलिटरेट, दे आर पुअर एंड दे आर इन द विलेज, राइट संजय जी? Yes, तो sir. सबसे पहली जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उनको एजुकेट करना जरूरी है।
एजुकेशन, जैसा साहब कह रहे थे कि वी हैव टू एम्पावर पीपल। नाउ एम्पावरमेंट कम्स फ्रॉम एजुकेशन एंड नॉलेज। जैसे वहां उस गांव में हो सकता है जहां वो रहते हैं, उस कम्युनिटी के बीच में बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही होंगी विच दे आर नॉट अवेयर, उसका वो बेनिफिट नहीं ले पा रहे होंगे, बिकॉज दे डू नॉट नो दैट एनी काइंड ऑफ नो पॉलिसी और प्लान ऑफ द गवर्नमेंट इज देयर फॉर देम। तो सबसे पहला ये है कि ये इंटरवेंशन किया जा सकता है। हमने देखा है मध्य प्रदेश के बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में, मैंने आई हैव वर्कड इन मध्य प्रदेश, आई हैव वर्कड इन झारखंड ऑल्सो। तो वहां के ट्राइबल एरियाज में भी सबसे पहली जरूरत यह है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। जरूरी नहीं है कि हर गांव में एक स्कूल हो, लेकिन अगर किसी का पैशन है तो वो अपना टाइम दे सकता है, गांव में जाके लोगों को बता सकता है और उनको एक अच्छी लाइफ के बारे में बता सकता है। So they have to start from this point, just to start educating them, making them literate first, then educate them. उसके बाद उनका खुद ही they will understand what is what, और वो डेवलपमेंट की प्रोसेस उनकी शुरू हो जाएगी। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक लोगों को अपने जो सरकार प्रोवाइड कर रही है, ये जो पूरा सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में उनको पता ही नहीं होगा, तो उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट गोज विदाउट सेइंग। तो जो भी हमारे मित्र पूछ रहे हैं, एनोनिमस है, वेरी नाइस क्वेश्चन। ही कैन स्टार्ट विद एजुकेटिंग पीपल, गोइंग टू द विलेजेस, टॉकिंग टू देम एंड स्टार्ट एजुकेटिंग देम। और उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो अपने बच्चों को, अगर पास में स्कूल है तो स्कूल भेजें, क्योंकि स्कूल में हम लोग सब जानते हैं, आजकल अखबारों में, मीडिया में इस तरह की इंफॉर्मेशन आती रहती है कि बच्चों का अटेंडेंस बहुत कम रहती है, ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई रहता है। तो इस सब को पहले अरेस्ट किया जाए, बच्चे स्कूल में जाएं, सारी फैसिलिटीज आजकल सरकार दे रही है। उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, लोगों के बीच में जाकर उनको बताने की जरूरत है, उनको कन्विंस करने की जरूरत है कि अपने बच्चों को एजुकेट करिए। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू स्टार्ट विद। सर, प्रेमानंद का एक क्वेश्चन है सर, कि स्टेट वाइज ऐसी कोई एजेंसी है कि जिसका हम टेक्निकल सपोर्ट ले? वैसे तो आपने, हीरालाल सर ने ओपनली बता दिया कि मॉडल गांव के साथ वो जुड़ के, और मॉडल गांव एक जो ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहा है, तो वो हैंडल जरूर कर सकता है जी। लेकिन इज देयर एनी स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस वेयर द पीपल कैन गो एंड टेक द टेक्निकल एडवाइस? सर आप आंसर करना चाहेंगे? हीरालाल सर। सर अनम्यूट करिए। हाँ, देखिए, जो हम लोग टेक्निकल एडवाइस की बात कर रहे हैं, हम लोग टेक्निकल एडवाइस लेते लेते गांव की हालत गड़बड़ कर दी है। जीडीपी में हमारा रेशियो घट गया। ये टॉप डाउन, ये जो टेक्निकल एडवाइस की बात कर रहे हैं, ये टॉप डाउन सिस्टम है। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ रामशरण वर्मा जी हैं, पद्मश्री हैं, कक्षा 8 फेल हैं क्या। तो टेक्निकल एडवाइस, हिमांशु है टेक्निकल, चाहे वो पढ़े हो या अनपढ़ हो, हमें पढ़ा नहीं कढ़ा टेक्निकल चीज चाहिए। तो आप अपने जिले में ही अगर देखें, आप जिस जिले में रहते हैं, कोई बकरी पालन से बहुत बड़ा धनी हो गया होगा, कोई रेशम पालन से धनी हो गया होगा, कोई किसी मतलब खेती से, कोई मछली पाल के बड़ा हो गया होगा। भैया मेरे, आप अपने जिले में ही अगर आप इसका अध्ययन करिए तो बहुत लोग धनी हो गए होंगे। आप उनके यहाँ चले जाइए, देखिए वो मछली से कैसे धनी हुआ। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, कैसे डॉक्टर साहब हड्डी रोग के विशेषज्ञ, उन्होंने ये कह रहे 1 किलो गोबर 200 रुपया कमवा देंगे। वो टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है कि अमेरिका और यूरोप में जाना चाहते हो भैया, जो 1 गोबर को बेकार बता दिया लोगों ने, जबकि वो कह रहे हैं हम तो यहाँ जो टेक्निकल नॉलेज की आपकी जरूरत है। हम लोग जो है शो ऑफ में, दिखावे में इधर उधर ज्यादा घूमते हैं। चिराग तले अंधेरा, जो हमारी ताकत है, जो हमारे घर में स्ट्रेंथ है, उसको हम, घर की मूली दाल बराबर एक कहावत है, वही हो गया है। मेरा अनुरोध है कि आप अपने जिले में, इसको मैंने अपने गांव में देखा। सबसे पहले मैं अपने गांव को मॉडल बनाने के लिए जब बात की 2 महीना से शुरू, तो मेरे गांव के 8-10 लोग जो चेंज मेकर के रूप में हैं, कभी बकरी पालन वाले के यहाँ जाते हैं, कभी दूध पालन वाले के यहाँ जाते हैं, कभी मुर्गी पालन वाले के यहाँ जाते हैं। इस तरह से वो सप्ताह में एक जगह जाते हैं, सीख के आते हैं, टेक्निकल नॉलेज लेके आते हैं और लागू करते हैं। तो मेरी राय यह है कि इधर उधर मत भटको, बहुत भटक लिए।
और भटकने से आपकी हालत ये हुई कि जीडीपी में आपका जो शेयर था वो घटता गया। अपनी ताकत को पहचानो, अपने जिले में जो टेक्निकल नॉलेज है उसकी नकल करो। जी संजय जी। वंडरफुल सर। नाउ सर, एक सवाल है, बहुत लोगों का है, गवर्नमेंट स्कीम को कैसे जोड़ सकते हैं? कन्वर्जेंस की जो बात की सर, कोई ऐसा इसमें आपका सुझाव है? जिस तरह से आप एडमिनिस्ट्रेशन में आप कनेक्टेड है सर, बहुत सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट की रहती है, तो पॉजिटिवली और मीनिंगफुल कोलैबोरेशन कैसे हो सकता है सर? देखिए, जब आप सोचोगे तभी तो, गांव वालों को पता ही नहीं है कि कोई स्कीम है और लेना है। जब पहले वो लेने का मन बनाए ना, जब वो जैसे मान लीजिए किसी को यह है मुझे पासपोर्ट बनवाना है, उसके दिमाग में आया कि मुझे अमेरिका जाना या कहीं जाना, पासपोर्ट, तो जब वो पासपोर्ट बनवाने के लिए तो क्या करेगा, वो गांव में 2-4 लोगों से जा पूछेगा, जो उसको सोचेगा ये पढ़ा लिखा है ये, या उस गांव में जो विदेश गया होगा जाएगा उसके यहाँ। देखिए क्या स्टेप है। तो जो गांव में विदेश रह रहा होगा अड़ोस पड़ोस में, अब आजकल तो सबसे अच्छा है, कुछ भी पूछना हो गूगल पे डाल दो, आपको सब स्टेप मिल जाएंगे, पढ़िए। देखिए, हम लोग पढ़ना लिखना छोड़ दिए हैं और इस वजह से ये दिक्कत है। तो अगर हमारी मन बनेगा और इच्छा बनेगी तो नॉलेज अपने आप आपसे कनेक्ट होगा और आपसे आपका काम हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है, पहले मन तो बनाओ, मन बनाओगे तो उसके पीछे आपको भागना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। ड्रीम करो, ड्रीम, सब कुछ मिलेगा। हमें कहीं से पता लग गया 1 किलो गोबर का मतलब 100 रुपया, तो भागा भागा मैं गया कहाँ, अहमदाबाद। और जब आपको, जैसे मान लीजिए आपको कोई सोशल वेलफेयर स्कीम की जरूरत है, आप लिखिए सोशल वेलफेयर स्कीम इन गुजरात गूगल में, अभी आपको सब पता लग जाएगा, कैसे मिलता, कहाँ से मिलता। अच्छा चलिए ठीक, आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप अपने गांव के किसी आदमी से बात करिए। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, क्या पहले ढूंढने की कोशिश करो, सब कुछ मिलेगा। वंडरफुल सर। अनुराधा सिन्हा का एक थोड़ा सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन है सर। मॉडल विलेज की बात वैसे तो गांव वालों को कैसे समझाई जाए, क्योंकि कन्विंसिंग वो भी कुछ हद तक डिफिकल्ट हो सकता है सर। तो बिकॉज देयर आर देयर ट्रेडिशंस और उनके जो रिचुअल्स है, हाउ टू कन्विंस टू द विलेजर्स? अनुराधा मैडम का सवाल है सर। हाँ मुनीष जी बताइए। हाँ देखिए, गांव वालों को समझाना सबसे आसान काम है। क्या, मैं कलेक्टर हो गया, सुनिए, मैं कलेक्टर हो गया तो गया बादा में, जब तो पहले जैसे कलेक्टर होते थे मैं भी था, तो जब मेरे पास लोग पानी के लिए आते थे तो मैं क्या कहता था, हेलो आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही, वीडियो ऑफ है। तो देखिए, जब मैं लोगों से मैं पूछता, कहीं साहब यहाँ पर पानी नहीं है और पानी ना होने से फसल नहीं होता, गरीबी होता, गांव में बच्चियों की शादी नहीं होती, तो हमने कहा आपको पानी चाहिए, कहीं ना साहब। तो मैंने उनसे पूछा पानी रहता कहाँ है, पानी का निवास स्थान कहाँ है, पानी का रेजिडेंस कहाँ है? तो लोगों ने बताया कुआं तालाब नदी। पानी कहाँ रहता? कुएं में रहता, तालाब में रहता, नदी में रहता। तो हमारा अगला क्वेश्चन था कुआं तालाब नदी कहाँ रहता है? कहीं हमारे गांव में ही कुआं तालाब नदी है। तो हमने ये उनसे अगला क्वेश्चन कहा, जब कुआं तालाब नदी में पानी रहता, आपको पानी की जरूरत है, तो ये 50 किलोमीटर अपने गांव से मेरे पास क्यों आए हो? आपको कुएं के पास जाना चाहिए, आपको नदी के पास जाना चाहिए, आपको तालाब के पास जाना चाहिए। जाइए, उसकी सेवा करिए, उसमें पानी रखिए। मैं आपको बताऊं, इसी चीज को समझाया, लोग माने। हम लोगों को देखिए, जो आप बात कहना चाह रहे हो इसका सार हम लोगों की एक आदत बन गई है। क्या, कुछ भी चाहिए गवर्नमेंट दे, पानी, हमें प्यास लगी है गवर्नमेंट पानी मुंह में डाल दे, हमें खाना चाहिए तो गवर्नमेंट हमारे मुंह में खाना डाल दे। क्या, हम बच्चा को पढ़ाना है तो गवर्नमेंट सब कुछ कर दे। गवर्नमेंट सब कुछ करती है और वो गवर्नमेंट की स्कीम गरीबों के लिए होती है, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है। हमें अपने इस सोच में बदलाव लाना है और तभी कन्विंस, अगर हम किसी चीज की रीजनिंग से बात करते हैं तो आदमी कन्विंस होता है, मानता है और बहुत अच्छा मानता है। अगर आपका इंटेंशन ठीक है, कहोगे कुछ, करोगे कुछ, सोचोगे कुछ। क्या, जनता को, जिसको हम मूर्ख समझते हैं गांव वाले को कि अनपढ़ है मूर्ख है, वो मूर्ख नहीं है,
आप बोलते हो कुछ, कहते हो कुछ, सुनते हो कुछ, वो सब समझता, आपसे बोलता नहीं है। तो अगर आपका इरादा अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, तो गांव वाला आपकी बात मानेगा, कन्विंस होगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव। बहुत अच्छी बात बताई सर, धरातल से आपने बात किया कि, लेकिन सर एक चीज और भी है कि ये तो आपने मतलब एक बात बता दी, कन्विंसिंग के लिए क्या और कोई सुझाव या टेक्निक हो सकती है सर अपार्ट फ्रॉम दिस? क्योंकि ये इसलिए सर, क्योंकि मतलब इस मूवमेंट को जोड़ने के लिए सारे लोगों को साथ में लेना पड़ता है, उनका पार्टिसिपेशन भी जरूरी है। एक अनुभव यहाँ पर बताना चाहिए सर। गुजरात में एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मतलब लोक भागीदारी का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। तो जहाँ जिस गांव में मैं रहता हूँ उसकी बगल का एक गांव है सर, वहाँ स्कीम के एक प्रावधान था कि 90% सरकार देगी और 10% गांव को निकालना है कोई काम के लिए। तो उसी गांव के जो लोग थे उसने यही बताया कि गांव में से कोई कंट्रीब्यूशन देना नहीं चाहता, एक फैक्ट है सर। तो हालांकि मैं नहीं मानता उसने किसी हद तक एफर्ट्स किया, लेकिन ये चीज हर जगह पे हो सकती है सर। आप बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उसी हिसाब से मतलब इस स्कीम का मतलब लोग भागीदारी का भी जरूरत है, लेकिन काम लोग कन्विंस नहीं हुए, वो 10% उसने नहीं दिया और हाँ स्कीम। देखिए, हाँ उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि हमारी आदत बिल्कुल दिमाग में घुस गई है कि हम कुछ नहीं देंगे, सरकार सब दे। तो ये कहते हैं ना, एक आदत बन गई है। तो और ये जब कोई आदत में चीज आ जाती है, तो ये बिहेवियर चेंज करना थोड़ा कठिन भी होता है और समय लगता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आदमी, मैं आज आपको आज भी बता दूं कि अगर जनता को ये पता लग जाए कि हम जो ये पैसा दे रहे हैं, हम ये पैसा दे रहे हैं और इसका दुरुपयोग नहीं होगा, अच्छी जगह लगेगा, तो पैसे का अभाव नहीं है। जनता को इतना धोखा मिला है विगत में, आएंगे डमरू बजाएंगे और बढ़िया बढ़िया सपना दिखाएंगे और 2 महीना बाद पैसा बटोरेंगे और लेके भाग गए। तो जो जनता को धोखा मिला, इसीलिए उसका विश्वास इतना टूट गया है कि जब कोई सही आदमी भी काम करता है तो उसको विश्वास करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर आप अच्छी नीयत से, अच्छी सोच से काम करेंगे तो 10% नहीं, 20%, 30% मिलेगा। आप अपने आप को बताइए तो कि मैं वो गड़बड़ वाला नहीं हूं, मैं सही वाला हूं। और ये सही वाला साबित करने के लिए त्याग, बलिदान, बहुत कुछ करना पड़ेगा। वंडरफुल सर। मुनीष सर, एक सवाल आपका डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। नाबार्ड, सवाल जी पार्टिसिपेंट का है कि नाबार्ड क्या रोल अदा कर सकता है? क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस का इसमें सपोर्ट लिया जा सकता है कि नहीं? यस, नाबार्ड के जैसा प्रॉब्ली आपको भी पता होगा कि नाबार्ड के सभी स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस भी हैं, राइट। ओवर 450 ऑफिस नाबार्ड ने खोल रखे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। वहां हमारा एक ऑफिसर रहता है जो नाबार्ड की सभी स्कीम्स को बताने के लिए ही वहां पदस्थ किया गया है, डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है। तो नाबार्ड से अगर कोई स्कीम आप चाहते हैं, नाबार्ड की स्कीम के बारे में जानना, कोई भी जानना चाहता है, तो वो नाबार्ड के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं और वहां से उनको आंसर मिलेगा। और मैं अपनी तरफ से, ये मेरा ऑफर है कि अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, आप हमको सीधे मॉडल गांव को उस क्वेश्चन को दीजिए, वी विल आंसर फ्रॉम हियर। इवन कोई क्वेश्चन नाबार्ड से रिलेटेड है वो भी हम आपको आंसर देंगे। तो जब भी कोई क्वेश्चन हो, आई डोंट नो व्हाट क्वेश्चन इज, तो जब भी कोई क्वेश्चन हो, कोई नाबार्ड से रिलेटेड क्वेरी हो, तो आप हमको बताएं, वी विल गिव यू द आंसर। थैंक यू। अदरवाइज नाबार्ड का ऑफिसर तो है ही, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर कहते हैं। गुजरात में भी हो सकता है 2-4 जिलों में ना हो, अदरवाइज सभी डिस्ट्रिक्ट्स में है। तो नाबार्ड स्कीम्स के बारे में उनका ऑफिस विजिट करें एंड वो बताएंगे आपको जो भी जानना चाहते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन उनके पास है। अदरवाइज आप हमको सीधा क्वेश्चन भेजिए, हम आपको आंसर करेंगे। सर एनी एक सवाल। हाँ, एनी हाँ टाइम फॉर नाबार्ड। कोई नाबार्ड से डायरेक्ट कोई सवाल हो, नाबार्ड से जानकारी हो, तो वो अगर है तो बताएं।
नहीं, बस उतना ही सवाल में लिखा था सर। एक सवाल मिस्टर अक्षय का है कि सर एवरीबॉडी वांट्स मॉडल विलेज, जी लेकिन क्रिटिकल एस्पेक्ट ये है कि उनके लिए फंड कहाँ से लाए। जी तो सोर्स ऑफ फंडिंग के बारे में आपका क्या अनुभव है सर? देखिए ऐसा मैं है, सुनिए हाँ मनीष जी, डॉक्टर हीरालाल बेटर समझा सकते जी सर। हाँ देखिए ऐसा है, यहाँ फंड की जरूरत कहाँ है भैया। आप खेती कर रहे हो, आप बीज डालते हो ना, और मॉडल गांव ये कहता है कि आप काला सफेद अभी जो है गेहूं जो पैदा करते हो उसकी जगह पे काला गेहूं का बीज पैदा करो, तो जो अभी आपका इनकम 1 रुपया है वो 3 रुपया हो जाएगा। तो आप सीड खरीदते हो, आप केवल आपको सीड परिवर्तन करना है। अब ये सीड परिवर्तन करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज के लिए आपको जहाँ काला हो रहा है वहां जाना पड़ेगा, सीख के आना पड़ेगा, काला गेहूं पैदा करोगे 3 गुना। तो ये जो हम लोगों के दिमाग में ये घर कर गया है कि काम करने के लिए पैसा चाहिए और फंड चाहिए, ये सबसे बड़ा ब्लॉकेड है। इसको कहते हैं माइंड ब्लॉकेड। मैं आपसे पूछूं, जो ये महोदय उनसे पूछिए कि वो जो महोदय हैं अन्ना हजारे जी रिटायरमेंट के बाद आए तो उन्हें कहाँ से फंड आया। फंड की जरूरत नहीं है, नॉलेज की जरूरत है, और नॉलेज के लिए पैसा नहीं चाहिए। समझने की कोशिश करिए, यही तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। हम लोग हर चीज को खरीदना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते। हमें एम्पावरमेंट नॉलेज से होना है, नई टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, पहले आप सिंचाई को पूरा पानी जमीन में करते थे तो आपको ज्यादा पानी लगता था, ज्यादा खर्चा आता था। अब ड्रिप इरिगेशन कर दीजिए तो सस्ता हो गया, तो आपका तो पैसा बचा और आपकी उपज भी बढ़ी। तो ये क्या है, नॉलेज है। हम लोग नॉलेज को पाने का प्रयास नहीं करते हैं, और नॉलेज को पाने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ संजय। वंडरफुल सर। एक सवाल है, वो रोल ऑफ एनजीओ का क्या हो सकता है सर? एनजीओ को मतलब किस तरह से हम जोड़ सकते हैं? मिस्टर अरविंद का सवाल ये है कि मॉडल गांव में एनजीओ का रोल क्या हो सकता है? एनजीओ हमसे हैंड होल्डिंग करे। एनजीओ के जो पदाधिकारी हैं उसके हर गांव में लोगों को कन्विंस करके विलेज मैनिफेस्टो बनवाए, विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से प्रचार कराए, प्रचार करा करके एक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट क्रिएट करे। फिर जो अच्छे लोग हैं उनको चेंज मेकर के रूप में तैयार कराए। जब ये माहौल हो जाए तो ये पीसी बनाए और गांव के एग्री को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट कर दे। वो बहुत अच्छा काम एनजीओ कर सकती है, कोऑर्डिनेशन, फैसिलिटेशन, डेवलपमेंट का। इसमें कुछ करना नहीं, केवल बिहेवियरल SBCC करना है, सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन के रोल में एनजीओ हमारे साथ जुड़ सकती है। नॉलेज हमने दे दिया, प्रोग्राम हमने दे दिया, स्टेप दे दिया। दे विल हैव टू इम्प्लीमेंट थ्रू हैंड होल्डिंग इन द विलेजेज टू गेट SBCC, सोशल बिहेवियरल चेंज। सर कई बार कन्वर्जेंस के लिए ऑफिसर्स, यहाँ पर एक सवाल ये भी आया सर, क्योंकि टाइम नहीं देते सर। देखो हम आपको बता दें, अधिकारी वहां समय नहीं देता। देखिए मैं आपको बता दूं, आपके घर में अगर 4 लड़के हैं, एक IAS है, एक डॉक्टर है, एक जो है चपरासी है और एक किसान है, तो आप सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? जो IAS है। तो यही सामाजिक स्थिति भी है। अगर आपके गांव में यह हल्ला होने लग जाए कि ये गांव विकास करना चाहता है, इस गांव के लोग जागरूक हैं क्या, अभी सारे गांव के लोग बैठ जाएं गांधी जी स्टाइल में कि भाई हमारे गांव में ये विकास नहीं हुआ है, और अधिकारी आए बताए देखो भागा भागा आएगा, तो आप बैठने की क्षमता, पहले आप डिमांड तो करो। क्या आप अकेले जाओगे? नहीं, 10 लोग जाए साइकिल किसी कार्यालय में और कहते हैं देखो हम 10 लोग आए हैं, अधिकारी आपको गेट तक आएगा, अकेले जाओगे नहीं मिलेगा। तो देखिए वो आपको जब अधिकारी के को जब पता लग जाएगी कि ये गांव इंटरेस्टेड है, और अगर मैं दाएं बाएं करूंगा तो ये गांव इतना इंटरेस्टेड है, तूफान खड़ा कर देगा, बवाल हो जाएगा, तो अधिकारी आपके आगे पीछे घूमेगा। वो आप पहले अपने आप को ये शो तो करिए। अंग्रेज क्यों भाग गए? अंग्रेज इसलिए भाग गए कि उन्हें ये पता लग गया था कि अब इस देश का बच्चा बच्चा रोड पे आएगा और मारेगा। क्या
लेकिन ये माहौल बनाने में काफी समय लगा। क्या ये माहौल की घर घर का हर बच्चा तैयार हो रोड पे आने के लिए, तो वो माहौल बनाने के सब इन्वायरमेंट बिल्डिंग पे डिपेंड करता है। अधिकारी नहीं, डीएम नहीं, मुख्यमंत्री जी भी उस गांव में जाएंगे। हमारे गांव, हमारे इनके यहाँ जो कक्षा 8 फेल अन्ना ये है हमारे रामशरण वर्मा जी, बनाना मैं इनके नाम से, इनके यहाँ मुख्यमंत्री कौन ऐसा आदमी है नहीं आता, बिना बुलाए आता। भाई आप यहाँ भी सब जाएंगे, अपने आप को उस लायक तो बनाओ। सर, प्रिया भंडारी जी का क्वेश्चन है कि कौन ऐसे, मतलब एक थोड़ा टेक्निकल सवाल है, स्टेक होल्डर फॉर कोलैबोरेशन कौन कौन से सर, मतलब सवाल को मैं थोड़ा इस तरह से बताना चाहता हूँ कि कौन मॉडल गांवों को बनाने के लिए कौन कौन से एजेंसी को हम जोड़ सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं या कन्वर्जेंस कर सकते हैं, या मतलब। हाँ मुनीष जी बताइए। देखिए संजय जी, जो सवाल है बहुत अच्छा है कि किस किस एजेंसी से हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हम लोग शुरू से बात करते रहे हैं कि एक डेवलपमेंट की डिमांड होनी चाहिए। बहुत सारी एजेंसीज ऑलरेडी गांव में काम कर रही हैं, जो डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स है फॉर एग्जांपल, वो गांव में इंप्लीमेंट हो रही हैं, तो वो गवर्नमेंट की एजेंसीज के माध्यम से हो रही हैं। लेकिन किसी को शायद पता ही नहीं होगा, जो खासतौर से जो अफेक्टेड पार्टी नहीं है उनको पता ही नहीं होगा कि कौन सी एजेंसी काम कर रही है। तो एक बार जब हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी, एक बार जो डेवलपमेंट का डिमांड क्रिएट होगा गांव में, तो वो एजेंसी भी विजिबल हो जाएंगी। तो वो सारी एजेंसी जो भी एरिया है, मान लीजिए कि एजुकेशन की बात है, तो एजुकेशन के लिए वहां स्कूल काम कर रहे हैं, स्कूल खुला हुआ है, बट स्कूल इज नॉट वर्किंग, इतनी सी बात है। हो सकता है कि मेडिकल के लिए कोई वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, बट इट्स नॉट वर्किंग। तो जब लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी, तो ये सारी जितने भी एरियाज हैं जिसमें डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स हमने बताए हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई एजेंसी वहां ऑलरेडी काम कर रही है, विच जो या तो लोग इंटरेस्टेड नहीं है तो उससे कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, या लोगों को पता नहीं है। तो वो सारी एजेंसीज आपके साथ जुड़ जाएंगी जब एक बार आप अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी और एक बार डिमांड फॉर डेवलपमेंट गांव में क्रिएट हो जाएगी। और जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जब चेंज मेकर्स वहां तैयार हो जाएंगे, तो वो सब इस चीज का पता सबको लग जाएगा कि कौन कौन सी एजेंसीज यहाँ काम कर रही हैं और किस किस को और करना है। तो ये बस ये डार्क स्पॉट इसीलिए है कि लोगों ने अभी तक उस पर इंटरेस्ट नहीं लिया है। हर आदमी समझता है कि डेवलपमेंट जो है वो सप्लाई ड्रिवन होना चाहिए, गवर्नमेंट डेवलपमेंट को इम्पोज कर दे हमारे ऊपर, बट दैट विल नेवर हैपन, दैट विल नेवर हैपन। जब तक हम डेवलपमेंट का डिमांड नहीं करेंगे, तब तक हमको कोई भी एजेंसी कैसे कोऑपरेट करेगी। एजेंसीज के लिए ये बहुत अच्छी सिचुएशन है कि हम डिमांड ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे गांव का डेवलपमेंट होना चाहिए। तो एक बार लोग डिमांड करेंगे तो सारी एजेंसीज आपके सामने अपने आप आ जाएंगी। इज दैट क्लियर संजय जी? यस सर, एक सवाल डॉक्टर हीरा साहब आपके लिए, आप उसका अच्छा आंसर दे पाएंगे सर। बिहार का है, सागर अली ने सवाल पूछा है सर। सवाल ये है सर, बिहार का स्कूल में पढ़ाई नहीं होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। हम स्कूल में गए तो टीचर बोलता है कि स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, और हम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के पास गए तो वहां बोला कि पढ़ाई नहीं होती है, और 5वीं क्लास के बच्चे को ABCD और नहीं आती है, तो क्या किया जाए? देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो प्राइमरी एजुकेशन की क्वालिटी का इशू बहुत दिनों से है और ये खराब स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इधर इधर विगत 3-4 सालों में ये देखने को मिला है कि बहुत सारे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक सुमोटो, बीटेक है वो लड़का और बीएड किया, उसके बाद वो टीचर हो गया, MBA है, PhD है, ऐसे बहुत सारे टीचर, नौकरी जब उनके उसमें नहीं मिला तो वो टीचर हो गए। वो लोगों की जो जिज्ञासा थी आगे बढ़ने की, बहुत अच्छे कॉलेज बनाए। और गवर्नमेंट भी, जैसे हम उत्तर प्रदेश में प्रिया सॉफ्ट नाम का एक हम लोग सॉफ्टवेयर लाए हैं कि हर स्कूल का हर चीज मॉनिटर होगा। तो गवर्नमेंट इस दिशा में प्रयास कर रही है और ये समस्या पे गवर्नमेंट का ध्यान है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, वो अपने गांव को मॉडल बनाए, ठीक है, तो ना वो मास्टर साहब दाएं बाएं बातें कर पाएंगे, ना कोई गार्जियन दाएं बाएं बातें। जब टीचर जी को पता लग जाएगा ना
किस गांव का हर आदमी जागरूक है और इस गांव का हर आदमी चाहता है कि हर गांव का हर आयाम ठीक हो, तो वो मास्टर साहब अपने आप ठीक हो जाएंगे। उसे मालूम है कि अभी ना उसे कोई पूछने वाला है ना देखने वाला है। तो जब गांव ही नहीं सोशल ऑडिट कर रहा है, गांव ही अवेयर नहीं है, तो इसीलिए उसका वो फायदा उठा रहा है। इसीलिए ये स्थिति है। जिस दिन गांव जाग जाएगा तो मास्टर साहब की वो जो बात है ना वो नहीं हो पाएगी। मैं आपको सही बता दूं, एज ए कलेक्टर गांव में टीचर नहीं आते तो तुरंत व्हाट्सएप करते थे, क्या सीधा कलेक्टर को, ये टीचर नहीं आया। एक टीचर ने कुछ मार दिया, वीडियो बना के सर्कुलेट कर दिया, अवेयरनेस ही तो है, इसका मतलब उस गांव के लोग सतर्क हैं। और वो टीचर फिर दाएं बाएं नहीं करता, तो गांव, वो टीचर गड़बड़ नहीं है, उस गांव के लोगों की रखवाली गड़बड़ है। कर्म करते जी संजय, बहुत अच्छी बात बताई सर। अवेयरनेस, स्ट्रक्चरल अवेयरनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपने जो बात बताई कि ओनरशिप पहले हमें जगाना पड़ेगा। सर, ऐसे कोई रिसोर्सेज या मटेरियल और ऐसे कोई मैनुअल्स है जो आप सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम वेबसाइट? आपने तो अच्छी बात बता दी, सारी चीज वेबसाइट पे रखी दी है, लेकिन ऐसा कोई क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसा कुछ है जो आप ओपनली या सब लोगों को हम शेयर कर सकते हैं? देखिए हमारे पास पीपीटी है और उसका डॉक्यूमेंट है, लेकिन दिक्कत यह है जब किताब बड़ी मोटी हो जाती है तो कोई नहीं पढ़ता। ओवरडोज ऑफ द इंफॉर्मेशन मींस रिड्यूसिंग द ग्रेस्पिंग ऑफ द नॉलेज। इसलिए हम लोग कम पढ़ो कम नंबर ज्यादा आए, ये फार्मूले काम करते हैं, कम पढ़ो नंबर ज्यादा आए। तो इसीलिए हम लोगों ने जो साइट पे चीजें डाली हैं उतनी डाली हैं जिससे कि वो उस नॉलेज को पचा ले और वो नॉलेज उसके खून में आ जाए। और जब उसके खून में आ जाएगा तो उसके दिमाग में जाएगा, और जब दिमाग में जाएगा तो दिमाग काम करेगा तो मॉडल गांव बनाएगा। अगर हम ज्यादा उसको देंगे ना तो वो ओवरडोज ऑफ नॉलेज को अवॉइड करना है। तो मॉडल गांव का पे, मॉडल गांव की साइट पे सफिशियंट नॉलेज है। इसके बावजूद अगर वो उसे लगता है नहीं डिस्कशन करना है तो वी विल वेलकम। हम लोग 1-to-1 बात करेंगे। उसका जिस आज आंसर दे रहे हैं वो हमसे मॉडल गांव पे मेल लिख दे, क्वेश्चन व्हाट्सएप पे लिख दे, कहीं लिख देगा, हम आंसर करेंगे। नहीं फोन मिला के बात करें हमसे, हम बात करेंगे। लेकिन हम दावे के साथ कहते हैं जितना सिंपल नॉलेज हमने दिया एक बार पढ़ लेगा तो उतना ही लागू कर ले तो हीरो हो जाएगा हिमांशु पटेल की जगह। बहुत अच्छी बात है सर। एक सवाल और पंचायती राज की ओर से सर। हालांकि मान लीजिए कि ऐसा है कोई गांव का युवा है, वो पढ़ता है और उसने, आपने बताया उसी तरह से ठान लिया कि आई वांटेड टू मेक अ मॉडल विलेज, वो किस तरह से कन्वर्जेंस खड़ा कर सकता है? हालांकि उसके पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ उसने यही सोचा कि आई वांटेड टू मेक अ मॉडल विलेज। तो उसे कुछ नहीं करना, हमारा विलेज मैनिफेस्टो ले ले, सॉफ्ट कॉपी ले ले, और गांव के जितने लोगों के पास मोबाइल, भाई देखिए ले ले। और हम कह रहे हैं कि उसके पास मोबाइल और फोन भी नहीं है तो कोई भी गांव में हाथ देखो, हर गांव में अच्छा आदमी है, किसी जो पैसा वाला आदमी है जा कहा साहब देखो ये हम लिए हैं, हमें ये करना है, ठीक है। केवल उसे विलेज में नहीं, जो पहले चुनाव होता था तो वही पर्चा बढ़ता था एक पेज का, वही वाला माहौल हम लोग खड़ा किए हैं। द सिंपलेस्ट, जो सबके समझ में आए और जिसकी कोई कास्ट नहीं हो। 1 रुपया में एक पन्ना छपता है तो वो भी मत करो, हमारा वाला ही हम आपको सॉफ्ट कॉपी दे देंगे। आप अपने मोबाइल में ले जा करके 10 लोगों को समझाओ, फिर 10 लोग अगर आप तैयार कर लेंगे तो वो 10 लोगों को समझाएंगे धीरे धीरे। भाई प्रधानी में क्या होता है, एक अनपढ़ गंवार आता है आपके कान में मंत्र मार के आपको समझाता, आप वोट भी देते हैं। तो अगर आप किसी को, आप जब कहोगे मैं आपको धनी बनाना चाहता हूँ, आपको पैसा कमाना चाहता हूँ, आपको आपके गांव को मॉडल बनाना चाहता हूँ, तो क्यों नहीं आपकी बात मानेगा भाई? आप किसी को धनी बनाएंगे तो आपकी बात नहीं मानेगा। अगर आप कहते मैं आपको गरीब करूंगा, आपको मार दूंगा, आपका खून निकाल दूंगा, तब तो नहीं मानेगा। जब मॉडल गांव सबको धनी बनाना चाहता है, गांव को धनी बनाना चाहता है, गांव का नाम पैदा होगा, तो क्यों नहीं मानेगा? लेकिन वो होता क्या है, मन में राम बगल में छुरी, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं, सामने वाला बहुत होशियार होता है। तो अगर आपकी, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आपकी नीयत और नीत अच्छी है आपको सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता।
सर, राजा राम चौहान का एक सवाल है, व्हाट आर द कम्युनिटी एंगेजमेंट प्रैक्टिस वी कैन अडॉप्ट फॉर विलेज डेवलपमेंट इनिशिएटिव? मुंबई से है, राजा राम चौहान का सवाल है। राजा राम चौहान जी, ये टोटल हमारा कॉन्सेप्ट ही कम्युनिटी, वो जब मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं कलेक्टर था, तो हमने जब ये अपना मैनिफेस्टो अपने सोशल मीडिया पर डाला, तो हमारे एक अधिकारी ने, उसकी बहन थी, उसको बड़ा पसंद आया, और उसने उस सोशल मीडिया जो हमारा एक पेज का जो विलेज मैनिफेस्टो, उसने अपने उस पर फोटो लगाया और अपने गांव चली गई, और उसको उसने सबको सोशल मीडिया सबके मोबाइल पे डाल दिया, और उसमें लिखा गांव की बेटी। और जब गांव में वो पढ़े लोग जो जो नहीं लगे, कहीं नहीं, अच्छा गांव में ये भी होता है, सफाई होता, दवाई होता, पढ़ाई होता, ये भी होता, आज तक तो बताया नहीं। उसने चवन्नी नहीं खर्च करी और पूरा गांव उसके पीछे खड़ा है। समझ गए आप? तो आप अपने इंटेंशन को, गांव को धनी बनाने के अपने इंटेंशन को विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से जाइए, गांव आपके पीछे पीछे आ जाएगा। ये हम लोग कई गांव में प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, तभी इसको अभी तक हम लोगों के 50 विलेज मैनिफेस्टो बन गए हैं, और गांव में वो विलेज मैनिफेस्टो दौरा करने लग गए, और दौरा करके पूरा गांव विकास के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गया। वंडरफुल सर, बहुत अच्छी बात आपने रखी। विलेज मैनिफेस्टो सर, थोड़ा सभी लोगों की ओर से सवाल है, ये विचार कहाँ से आया है विलेज मैनिफेस्टो वाला, क्योंकि वो अहम डॉक्यूमेंट्स है आपके लिए। वेरी नाइस। देखिए, ये विलेज मैनिफेस्टो का आइडिया ये आया कि जब हम गांव में जाते थे तो हम सबको, जैसे गांव में जाते थे तो पूछते थे, हमने बताओ गांव में क्या क्या होना चाहिए। तो जो हमारे अधिकारी, कर्मचारी, प्रधान, सरपंच होते थे, वो 3-4 मुद्दे के बाद रुक जाते थे, उन्हें मुद्दे ही नहीं पते थे कि क्या क्या होना चाहिए। तो हमने ये महसूस किया कि भैया पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किताब में कितने चैप्टर होगा, तभी तो आप पढ़ेंगे। तो जब गांव में विकास के मुद्दों का चैप्टर ही नहीं पता है, तो क्या होना चाहिए? तो हम लोगों ने इसका अध्ययन किया, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए कि पहले गांव वाले को विकास के मुद्दों का हेडिंग तो पता हो, टाइटल तो पता हो, इस लिहाज से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढा गया, और उस विलेज मैनिफेस्टो के रूप में हमारे सामने ये कागज का जन्म हुआ, जिसको हम लोग विलेज मैनिफेस्टो कहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई, और हमारे पास और 5-7 मिनट है, और कोई सवाल है तो ले सकते हैं, अदरवाइज सर, मनीष सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कंक्लूजन की ओर पे है, क्या कहना चाहेंगे कि इसी फोरम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव, ट्रस्टीज और सीनियर लोग हैं, जी, तो वो क्या कर सकते हैं, किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हाँ संजय जी, यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, ऑल ऑफ अस, particularly the educated section of the society, we have to take the responsibility of developing this country, isn't it? Unfortunately, that has not been happening. हम लोग सब बातें तो कर रहे हैं, बट ग्रास रूट लेवल पर जाकर उस काम को करने बहुत कम लोग कर पा रहे हैं, फॉर वेरियस रीजंस। हो सकता है अपने अपने कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो हमारा तो यही रिक्वेस्ट सबसे रहेगा कि आप जहां भी हैं, हम लोग सब इंडिया में रूरल एरिया से किसी न किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे आपके साथ जो आज जुड़े हैं जो पूरी तरह से 100% अर्बनाइट्स, अर्बन लोग होंगे। तो जहां भी आप हैं, आप अपने गांव के बारे में, अगर आपका अपना गांव है तो अपने गांव के लोगों से कनेक्ट करिए और उनको इसके बारे में बताइए, इसके बारे में उनको थोड़ा प्रेरित करिए, मोटिवेट करिए। आपके आपके अब अगर आपका गांव नहीं है तो आपके कोई मित्र होंगे, उनका गांव होगा। फाइनली वी हैव टू रीच आउट टू द पीपल इन द विलेजेस एज एनलाइटेंड पीपल, तभी हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन डू। जब तक हम गांव से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हम केवल ये बात करते रहेंगे, बट नथिंग विल हैपन एट द ग्रास रूट लेवल। हमारा कोई कंट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं हो पाएगा। तो हमको गांव से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हर आदमी का अपना मैकेनिज्म होगा, और उस तरह से वो गांव तक पहुंचेंगे और अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। दिस इज व्हाट आई फील।
Yeah, wonderful, sir. Now, Dr. Hiralal, sir, would you like to advise the audience how they can continue? देखिए, मैं तो सबसे पहले यही कहूंगा, देखिए मुझे भी नौकरी करते हुए बहुत दिन हो गया, मैं भी गांव की तरफ, मैं पिछले जब से हमने कहा कि अगर मुझे दुनिया को मॉडल गांव में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे अपने गांव, तो हम भी 3 महीने से अपने गांव की तरफ, कुछ नहीं, हमने लोगों को सपना दिखा दिया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा दिए हैं और हमने यही कहा कि अपने जिले में जहां जहां अच्छा गाँव, वही ढूंढते हैं आपस में, हमें ढूंढना भी नहीं गए, बकरी वो रोज ग्रुप में डालते हैं। और मैं आपको बता दूं, इतना बढ़िया, वही नॉलेज इज पावर, ठीक है। तो सपना देखना और सपना देख को पूरा करने के लिए नॉलेज के पीछे दौड़ना और नॉलेज को लाके गांव में लागू करना। ना पैसे की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, अगर जो जरूरत होगी अपने आप रास्ता बनता जाएगा, यही मेरा संदेश है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपके काफी ऑडियंस हैं और बड़े एक्टिव ऑडियंस हैं। ये शो करता है कि गुजरात के लोग जागरूक हैं, केवल उनको एक दिशा देने की जरूरत है। ये मॉडल गांव बनेगा आपका। इनसे सबसे कहो, हमसे तुरंत जुड़े, रिश्तेदारी बनाए मॉडल गांव को। आज के बाद से जो लोग भी पार्टिसिपेंट हैं मॉडल गांव से अपनी रिश्तेदारी बना लें। कैसे बनाएंगे? ईमेल लिखें हमें, व्हाट्सएप लिखें हमें, हमारे सारे सोशल मीडिया को ज्वाइन करें और सपने देखना शुरू करें, तो हमारी उनकी रिश्तेदारी बन जाएगी। प्लीज। वंडरफुल सर, बहुत अच्छी बात बताइए और बहुत इंस्पिरेशनल बातें आपने रखी। और सबसे अच्छी बात है कि सपना देखना, अपने गांव की ओर देखना, नियत, अपनी नियत साफ बनाना, वो बहुत प्राइमरी बात है। और एक चीज यहाँ इस वेबिनार से सर हमें ये भी पता चला कि यहाँ पर कोई जार्गन भी हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि एक बात यही भी होती है कि बहुत सारी टेक्निकलिटी आती है, तो आप और मुनीष सर ने दोनों ने ये बात को बहुत आसान तरीके से हमारे सामने रखी। और हमारे जो इस पार्टिसिपेंट जो पूरे देश से जुड़े हैं, गुजरात के भी है, बाहर से भी है, उन लोगों को बहुत आसान तरीके से आपने बात बताई, तो सर हम आपका शुक्रगुजार हैं। और आपने जिस तरह से मॉडल विलेज के साथ जोड़ने की जो आपने ओपननेस दिखाई, और मैं मानता हूँ कि इसी चीज को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन उसका फायदा उठाएंगे अपने गांव को बदलने के लिए। और नवजीवन सेंटर फॉर डेवलपमेंट का यही एक प्रयास है कि सिविल सोसाइटी और नॉन प्रॉफिट सेक्टर और सोशल एंटरप्राइज इसी सेक्टर में इफेक्टिवली काम कर सके, इसलिए अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ना। और आपने हमारा एक ही फोन कॉल से इनविटेशन एक्सेप्ट किया, वही बताता है कि सर आप इस काम को लेकर कितने सीरियस है और कितना जल्दी से काम करना चाहते हैं। तो हम बिल्कुल मानते हैं कि सर आप हमारे लिए, इस संस्थाओं के लिए एक बहुत प्रेरणादायी काम कर रहे हैं। और इसी मंच से मैं आपका, मॉडल गांव का और मुनीष सर का अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय दिया, हमें इंस्पायर किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और पार्टिसिपेंट आप लोग भी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारत माता की। थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद। पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद। And we will keep in touch, and we will again organize this kind of webinars in future too. Thank sure, you. 100% sir. Thank you sir. Thank you so much sir. Namaste sir. Namaste sir. Thank you.